Good morning, all. Today we are going to do the topic techniques of scientific management. In the last video, we did the topic principles of scientific management. टेलर ने 4 principles दिए हैं और 7 techniques दी है. So we studied in the last video, we studied about the 4 principles of Taylor, that is science not rule of thumb, harmony not discord, cooperation not individualism, and development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. Now today we are going to do about the techniques of scientific management, which are 7 techniques. याद रखना 4 principles हैं टेलर के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में दिए हैं उन्होंने, और 7 techniques हैं. एंड द टेक्निक्स आर फंक्शनल फोरमैनशिप, second is standardization and simplification of work, third is method study, fourth is motion study, fifth is time study, sixth is fatigue study, and seventh is differential piece wage rate system. थोड़ा टॉपिक बड़ा है, इसलिए मैं तुम लोग बच्चों को आसानी हो इसलिए मैं 3 टेक्निक्स इस वीडियो में डील करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में 4 टेक्निक्स बताऊँगी, क्योंकि बहुत सातों एक साथ एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो शायद बच्चों को नहीं समझ में आएगा. therefore आई विल गो विथ 3 टेक्निक्स फर्स्ट एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो विथ 4 टेक्निक्स. Now the first technique of scientific management is functional foremanship. Taylor was of the view that foreman is the lowest ranking manager and highest ranking worker. And he was of the view that no person has got all the qualities at the same time, कि एक person में सारी qualities नहीं हो सकती. Therefore he divided the work between planning in charge and production in charge. That is, he divided the work between 8 specialists. वापस बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ. Taylor was of the view that no person has got all the qualities at the same time, so he divided the work into 8 specialists. Therefore, this technique is also known as, that is, functional foremanship is also an extension of one of the principle, that is division of work. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. फंक्शनल फोरमैनशिप इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क. ये डिविजन ऑफ वर्क जो प्रिंसिपल है ये हेनरी फ्योल ने दिया है. हेनरी फ्योल का भी कहना था कि वर्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड करो, बट डिफरेंस है दोनों में. टेलर का कहना है वर्क को डिवाइड करो, क्योंकि एक पर्सन के पास सारी क्वालिटीज़ नहीं होती है, तो वर्क को 8 स्पेशलिस्ट में बांटो. वापस बोल रही हूँ, टेलर वॉज ऑफ द व्यू दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड इंटू 8 स्पेशलिस्ट बिकॉज नो सिंगल पर्सन हैज़ गॉट ऑल द क्वालिटीज. देयरफॉर ही डिवाइडेड द वर्क इंटू प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज. अब हम ये अपना फ्लो चार्ट देखेंगे. फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज हैं. प्लानिंग इंचार्ज में 4 पर्सन्स हैं, दैट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन. देन प्रोडक्शन इंचार्ज में अगेन 4 पर्सन्स हैं, दैट इज स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर. अब इनके क्या क्या फंक्शंस हैं वो बता रही हूँ. एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ. दिस टेक्निक इज एन एक्सटेंशन ऑफ डिविजन ऑफ वर्क. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. And Taylor was of the view that no person has got all the qualities, therefore he divided the work into 8 specialists. And the specialists are instruction card clerk, route clerk, time and cost clerk and disciplinarian. And then speed boss, gang boss, repair boss and inspector. अब इन 8 के functions बताऊंगी, देखो क्या है. सबसे फर्स्ट आएगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. ही गेव इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर. देखो नीचे सबसे नीचे जो है वर्कमैन है. So instruction card clerk gave instruction to the worker. Route clerk, नाम से ही पता चल रहा है, he decides the route of production. Then is time and cost clerk. क्या करता है? Prepares time and cost sheet. And disciplinarian maintains discipline in the organization. Then comes production in charge. Again 4 specialists are there. पहला है speed boss. He sees that work is done with adequate speed. Work is done with adequate speed. Gang boss sees that all the machines are ready for production. कोई खराब तो नहीं है? अगर खराब है तो रिपेयर बॉस को दे दो. Gang boss sees that machines are ready for production. Repair boss looks after the repairs and maintenance of machinery and inspector inspects the quality of work. बहुत बार 1 marker क्वेश्चन है. What is the work of inspector? He inspects the quality of work.
बच्चे लिख देते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, गलत हो जाता है, क्वालिटी ऑफ वर्क। सो एक बार और रिपीट कर रही हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए एकदम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। Foreman is the lowest ranking manager and highest ranking worker. Taylor was of the view that no person has got all the qualities, therefore, he divided the work between 8 specialists. Therefore, this principle is an extension of division of work. And then write the functions of all the specialists. That is, instruction card clerk gave instruction to the workers. Route clerk decides the route of production. Time and cost clerk prepares time and cost sheet. And disciplinarian maintains discipline in the organization. Speed boss sees that machines are ready for production. Speed boss sees that work is done with adequate speed. Gang boss sees that machines are ready for production. Repair boss looks after the repairs and maintenance of machinery. And inspector inspects the quality of work. So that is all about functional foremanship. Now we are coming to the second technique of scientific management, and that is standardization and simplification of work. मैंने कहा ना आपको ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। अब स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क दोनों को अलग अलग बताऊंगी। पहले स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बताती हूँ। व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन? स्टैंडर्डाइजेशन refers to devising new varieties instead of existing one. बोलता है मार्केट में नई नई वेराइटीज़ लेके आओ तभी तो प्रोडक्ट चलेगा मार्केट में. इट इज़ डिवाइजिंग न्यू वेराइटीज़ इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग वन. It refers to the process of setting standards for every business activity. पहला, devising new varieties instead of existing one, and setting standard for every business activity, whether it is a process, it is raw material, time, product or machinery. What is standardization? It is devising new varieties instead of existing one and setting standard for every business activity, whether it is a process, raw material, machine, method or product. अब इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं. स्टैंडर्डाइजेशन आपको समझ आ गया. नई नई वैरायटी मार्केट में लेके आओ तभी. मोबाइल फ़ोन है, पुराने वर्जन हो जाते हैं, कौन खरीदेगा? नई वैरायटी लेके आओ. सो दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन, डिवाइजिंग न्यू वैरायटीज इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग वन. मार्केट में जब किसी भी टेक्नोलॉजी की नई नई चीज़ें आती है, उस टेक्निक में थोड़ा सा चेंज होकर कुछ नया वर्जन आता है तभी तो लोग खरीदेंगे उसको. इट इज़ डिवाइजिंग न्यू वैरायटीज इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग वन. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, टू रिड्यूस द गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू. 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहले ही बता रही हूँ. स्टैंडर्डाइजेशन लिखना है, क्या डेफिनेशन है, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. प्रोडक्ट के नए वर्जन लाने हैं तो उसकी प्रोडक्ट को फिक्स टाइप, साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स में बांट दो. टू रिड्यूस द गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. सेकेंड इज टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट. यानी कोई प्रोडक्ट अगर ख़राब हो जाता है तो हम इंडियंस प्रोडक्ट को कभी नहीं फेंकते हैं. हम क्या करते हैं? उसके स्पेयर पार्ट को बदलवा के वापस उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं. टू एंश्योर इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स. यानी इंटरचेंज हो सकता है उसका पार्ट, एंश्योर करो. टू एंश्योर इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स. तीसरा, टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस and quality in material. That is, material should be of excellent quality. Fourth, to establish standard of performance of men and machine. चाहे वो men का performance हो, standardize होना चाहिए, वो machine का performance हो, वो भी standardize होना चाहिए. क्या है इसके 4 objectives? To reduce given line of product to fix type, size and characteristics. First objective. Second, to ensure interchangeability of manufactured parts and products. Third, to establish standard of excellence and quality in material. And fourth, to establish standard of performance of men and machine. वापस बता रही हूँ, ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला, reduce the product line to fix type, size and characteristics. फिर देखो कि उसके पार्ट्स इंटरचेंज हो सकते हैं या नहीं. उसके बाद देखो कि क्वालिटी जो है मटेरियल की एक्सेलेंट है या नहीं है, और मेन और मशीन का परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है. ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टैंडर्डाइजेशन के. अब आ रही हूँ मैं सिंप्लीफिकेशन में.
Now, what is simplification? It is eliminating superfluous varieties, size, and dimensions. What is simplification? It is eliminating superfluous variety, size and dimension. Eliminating का मतलब हटा दो, eliminate कर दो. किसको? Superfluous मतलब जरूरत से ज़्यादा variety, size and dimensions. जरूरत से ज़्यादा variety अगर आप बना रहे हो तो उनको हटाओ और उन्हीं में कॉन्सेंट्रेट करो जो प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा सेल हो रहा है. ध्यान से सुनना. सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंपल कर दो, चीज़ों को बहुत सिंपल कर दो ताकि मार्केट में प्रोडक्ट आप अच्छे बना के दो, और जो प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं वही बनाओ, उन्हीं पे कॉन्सेंट्रेट करो. प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और इक्विपमेंट्स का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा. मशीन की कॉस्ट कम हो जाएगी, लेबर की कॉस्ट कम हो जाएगी. So what is simplification? It is eliminating superfluous varieties, size and dimensions, and the objectives of simplification are, पहला, first is to you can say to get saving in cost of labor, machine and tools. अगर आप जो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल रहे हैं उनको अगर हटा दोगे तो क्या होगा? मशीन की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट कम हो जाएगी. सेविंग इन कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन्स एंड टूल्स. टू रिड्यूस इन्वेंट्री, जो आप स्टॉक इतना सारा खरीद के रख रहे थे उन प्रोडक्ट का भी जो मार्केट में नहीं चल रहे थे उनके भी रॉ मटेरियल को खरीद रहे थे वो कम हो जाएगा. टू रिड्यूस इन्वेंट्री. टू एंश्योर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, जो मार्केट में प्रोडक्ट चल रहे हैं वो इक्विपमेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन या फुल यूटिलाइजेशन होगा. एंड टू इंक्रीज टर्नओवर, और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा क्योंकि आप उन चीज़ों को तो हटा ही दे रहे हो जो मार्केट में नहीं चल रही है. सिंप्लीफिकेशन यानी चीज़ों को सिंपल कर देना. Eliminating superfluous varieties and size and dimensions. Reducing cost of labor, machines and tool. Objective इसका पहला. Second objective, to reduce inventory. कम हो जाएगा ना, स्टॉक कम हो जाएगा रॉ मटेरियल का. अगर आप जो प्रोडक्ट नहीं चल रहे हैं उनका रॉ मटेरियल नहीं खरीदोगे तो. टू एंश्योर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, जो मार्केट में प्रोडक्ट चल रहे हैं उन इक्विपमेंट का फुल यूटिलाइजेशन होगा जो पहले नहीं हो रहा था. एंड टू इंक्रीज टर्नओवर, प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा. एग्ज़ाम में एक बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था कि कॉफ़ी के बहुत सारे फ्लेवर्स मार्केट में चल रहे हैं. कॉफ़ी के एक शॉप है जो बहुत सारे कॉफ़ी के फ्लेवर्स बेच रही है, बट मार्केट में कुछ ही फ्लेवर्स ज़्यादा बिक रहे हैं, बाकी के तो नहीं बिक रहे हैं, बहुत कम बिक रहे हैं. या फिर तो ऐसे केस में क्या टेक्निक उस शॉप को अडॉप्ट करनी चाहिए? तो क्या अडॉप्ट करेगा? सिंप्लीफिकेशन. वो क्या करेगा? उन कॉफ़ी फ्लेवर्स को हटा ही देगा जो मार्केट में बहुत कम चल रहे हैं या ना के बराबर चल रहे हैं, और उन फ्लेवर्स पे, कॉफ़ी के उन फ्लेवर्स पे कॉन्सेंट्रेट करेगा जो मार्केट में ज़्यादा बिक रहे हैं. इससे क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है. उससे क्या होगा? हमारी जो मशीन, जो प्रोडक्ट चल रहे हैं वो मशीन का फुल यूटिलाइजेशन होगा. जो इन्वेंट्री हम नहीं प्रोडक्ट चल रहा है, नई कॉफ़ी के फ्लेवर्स चल रहे हैं, उनका भी स्टॉक रॉ मटेरियल का रख रहे हैं, वो भी रिड्यूस हो जाएगा. वो भी हमको लाना नहीं पड़ेगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा, और मशीन और लेबर की कॉस्ट भी बच जाएगी क्योंकि हम वो प्रोडक्ट को हटा ही दे रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, नहीं बना रहे हैं. सो स्टैंडर्डाइजेशन इज डिवाइजिंग न्यू वेराइटीज इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग वन, एंड सिंप्लीफिकेशन इज एलिमिनेटिंग सुपरफ्लुअस वेराइटी, साइज एंड डायमेंशंस. और इनके 4 ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताए हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना. डेफिनेशन और 4 ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइजेशन के, सिंप्लीफिकेशन की डेफिनेशन और उसके 4 ऑब्जेक्टिव्स. अब मैं तीसरे इसमें आ रही हूँ जो कि है मेथड स्टडी. मैंने कहा आपको आज हम 3 ही करेंगे टेक्निक्स ताकि आपको अच्छे से हो जाए. फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन एनी टाइम आस्क मी. नाउ व्हाट इज मेथड स्टडी? मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट मेथड टू कंप्लीट अ टास्क. ये हमने साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में भी पढ़ा था. दैट इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट मेथड टू कंप्लीट अ टास्क. And that is should be that method, one best method should be determined right from the procurement of raw material till the final product is delivered to the customer. What is method study? To find out one best method to complete a task, and that should be from procurement of raw material till the product is delivered. Now what is the objective of method study? अब देखो हम सबके objective भी पढ़ रहे हैं. So objective of method study is to find out, that is to minimize cost of production,
मैक्सिमाइज क्वालिटी एंड मैक्सिमाइज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अगर आप एक ही बेस्ट मेथड अपनाएंगे किसी काम को करने के लिए तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा ना, वेस्टेज नहीं होगा, तो इट विल मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्वालिटी अच्छी होगी क्योंकि सभी लोग एक ही मेथड यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो मैक्सिमाइज क्वालिटी और एक ही तरह का प्रोडक्ट निकलेगा तो मैक्सिमम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी होगा। वापस बता रही हूँ, व्हाट इज मेथड स्टडी? मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट मेथड टू कंप्लीट ए टास्क। पहला, राइट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल its delivery to the consumer. And the objective of method study is to minimize cost of production and to maximize, first is to minimize cost of production, second maximize quality, and third is maximize consumer satisfaction. So this is all. मैंने अभी सिर्फ 3 टेक्निक्स किए हैं। पहला फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, और तीसरा मेथड स्टडी। एक चीज़ और मेरे को बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 4 स्टडी है ना, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी और टाइम स्टडी, इन चारों स्टडी का एक नाम है वर्क स्टडी। चारों स्टडी को हम एक नाम से बोलते हैं वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर में 4 स्टडी आती है जो कि है मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आता है वर्क स्टडी, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, राइट द 4 टेक्निक्स ऑफ वर्क स्टडी। फिर हम सोचते रहेंगे कि कहाँ है, एक लाइन दी है बुक में खाली इसके बारे में। द 4 टेक्निक्स ऑफ वर्क स्टडीज, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी। तो मैंने आपके 3 टेक्निक्स किए हैं अभी इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप लोग इतना सारा एक साथ नहीं ले पाओगे, इसलिए मैंने 3 टेक्निक्स को ही कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में 4 और टेक्निक्स कवर करूँगी। तो 3 कौन कौन से कवर कर लिए मैंने? फंक्शनल फोरमैनशिप कवर कर लिया, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क कर लिया, और मेथड स्टडी कर लिया। प्लीज़ वीडियो को बार बार सुनना, उसके नोट्स बनाना, नोट्स ज़रूर बनाना। जो मैंने बोला है, मैंने बहुत क्लियर कट बोला है। अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे, मेरा सुनोगे लेक्चर, उसके बाद टेक्स्ट बुक को पढ़ोगे, आपको बिल्कुल आ जाएगा। बट ओनली थिंग इज, जैसे हम लेक्चर दे रहे हैं वैसे नोट्स भी बनाते जाएं। एनी डाउट कैन आस्क अस एनी टाइम। थैंक यू, गॉड ब्लेस।